like to say thank you for giving me a wonderful opportunity to introduce myself. Sir, my name is Lokesh Ratnaparke from Gwalior and currently I am living in Indore. Sir, I have completed my graduation from Shri Ram College of Engineering and Management, and if I talk about my family, we are 4 members and including me. My strength is self-confidence, activeness, and my hobbies is playing chess, cricket. How to prove that you are self-confident? For example, I am asking to you that how to prove that you are self-confident? This is your strength. I am just asking to you, okay? How to prove that you are self-confident? Self-confidence. No, any answers you can give. It is not a technical question. I am just discussing. In any situations will be occurred in your life and you have feel that you are self-confident. Any examples, I mean? No. Not belonging from technical. This can be your personal exposures also, personal activities also, and during your college times also, during your learning skills also. You say that you are self-confident and you are not providing a proof that why, how to, you are not proving that. Then how I can observe your strength? I think you should be cool for interview. Okay, not hesitate. It is the personal discussion, not the interviews. Okay. Okay, sir. And you can answer in Hindi also, if you have no any English word, because I want to know your knowledge, not your languages. Okay. Okay. Now I am asking some questions in technical also. Okay. What is difference between manual testing and automation testing? Manual testing, sir, we will manually check application components. Which type of testing we can't do using manual? That is only applied by automation. And which type of testing that we cannot do by automation, that will be only implemented by manual? That thing I want to know. Any testing you have done in automations? Yes. That you think that this is not possible by manual? Any testing what you have done in automation that is not possible by manual? Sir, You know CAPTCHA? capture related form. You know that it is possible by automation testing? No, sir, manual testing. Okay. And what is not possible by manual Capture testing? form, game application. Yeah, what is not possible by manual testing? So game application, capture related form, possible by manual testing. What is not possible by manual testing? The load testing, stress testing, Okay. And performance testing, that is not possible by manual testing. Okay. What is alpha testing and beta Sir, testing? alpha testing, what is? This type of testing will be performed by internal team of the company, and they will execute complete software from starting module to ending module. And beta testing, in this type of testing will be performed by client. Will be performed by client. It will be bugs and reviews of the project, mostly product based software released under beta version. Any example of beta version? Google Chrome you have used, I think that. Google Chrome. Yes. Yeah, beta version also Google Chrome launched, that is the beta version. Yes. Gamma testing. Gamma testing,
gamma testing, this type of testing will be performed by after completion of beta testing. Who do gamma testing? जो कि सर बीटा टेस्टिंग में जो बग्स एंड रिव्यूज सर जो रह जाते हैं वो सर गामा टेस्टिंग में आगे से सॉल्व किए जाते हैं। STLC में ऐसा कौन सा फेस होता है जो STLC में भी होता है? सर टेस्ट डेवलपमेंट फेज, टेस्ट केस डेवलपमेंट। टेस्ट केस डेवलपमेंट STLC में होता है? नो सर, SDLC में सर डेवलपमेंट फेज होता है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है STLC में? रिक्वायरमेंट एनालिसिस सर SDLC में। और STLC में? SDLC में सर रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस नहीं होता? रिक्वायरमेंट एनालिसिस सर SDLC में होता है सर। गैदरिंग रिक्वायरमेंट एनालिसिस अपन STLC में नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाला पार्ट ही कॉमन है दोनों में। यस सर। ठीक है, इट्स द कॉमन फॉर STLC एज वेल एज STLC। What is sanity testing? Sanity testing always will be performed by after multiple smoke testing. Sanity testing always will be performed by last build or module. जो भी सर sanity testing प्रोजेक्ट देने के बाद होता है sanity testing कि प्रोजेक्ट देने के पहले होता है? सैनिटरी टेस्टिंग सर प्रोजेक्ट देने के बाद की प्रोसेस है। तो प्रोजेक्ट दे दिया हमने क्लाइंट को, फिर क्लाइंट के पास जाएंगे, फिर बोलेंगे लाओ हम टेस्ट कर देते हैं अपना सॉफ्टवेयर, तो सैनिटरी टेस्टिंग होती है। यूएटी टेस्टिंग सर, यूएटी टेस्टिंग से पहले की टेस्टिंग होती है सर। सैनिटरी टेस्टिंग प्रोजेक्ट देने की पहले की टेस्टिंग होती है सर। मंकी टेस्टिंग और गोरिल्ला टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है? सर मंकी टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ नेगेटिव टेस्टिंग। Monkey testing always will be performed randomly without any test cases and test input in order to break the system. And gorilla testing में सर किसी भी कंपोनेंट को सर बार बार मल्टीपल टाइम्स चेक करना सर, किसी भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को। जैसे सर लॉगिन फॉर्म में सर ईमेल आईडी वैलिडेशन है तो उसके 100+ कॉम्बिनेशन सर चेक किए जा सकते हैं। किससे? गोरिल्ला से। गोरिल्ला से। और अनस्ट्रक्चर्ड टेस्टिंग क्या है? Unstructured testing. एड हॉक टेस्टिंग? Ad hoc testing is a informal testing. Ad hoc testing is a random testing in order to break the system. जो किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती, जो रैंडमली बनी होती है। एड हॉक टेस्टिंग। हाँ सर, एड हॉक टेस्टिंग के 3 पार्ट। RTM पता है आपको? RTM रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करती है सर। टेस्ट केसेस से पहले बनती है कि टेस्ट केस बनने के बाद बनती है? सर RTM से टेस्ट केस बनने की पहले बनती है। बनाया आपने RTM? नो सर। नहीं बनाया? टेस्ट केस बनाया है? यस यस। सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स क्या होता है टेस्ट केस में? टेस्ट केस में सर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं सर। टेस्ट केस के पैरामीटर्स पता है आपको? पैरामीटर समझते हो? जो आप एक्सेल फाइल में भी आपने बनाया होगा, जो कॉलम में लिखते हो उसको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। Yes, कौन से पैरामीटर्स तो होते हैं? सर प्रोजेक्ट टेस्ट रिपोर्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट यूआरएल, टेस्ट सिनेरियो, टेस्टर नेम एंड वर्जन, टेस्ट केस आईडी, टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, टेस्ट डाटा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट, बग प्रायोरिटी, टेस्ट रिजल्ट। इन्हीं में से जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है वो कौन सा है? Which is the important parameters of test case documents? Do you know that? So test scenarios. Test scenarios. And test case description, it is important terms or not? Test case description. That is important. How many type of bug? Bug. Bug priority means I want to ask bug priority. How many type of bug priority? Critical, high, Critical, high, low. 3 types of bug. medium,
मीडियम। Means what is the difference between medium and high? सर जैसे सर एक सर लॉगिन फॉर्म है सर, उसमें सर सबमिट बटन बिल्कुल क्लिक ही नहीं हो रहा है सर, तो वो सर एक हाई सेलिब्रिटी में जाएगा सर। और मीडियम में? और मीडियम में सर अगर हमने इनवैलिड कोई फॉर्म फिलअप किया और फिर अगर सबमिट बटन क्लिक नहीं हो रहा है सर, उसको मीडियम में। सेवेरिटी क्या होता है? व्हाट इज द सेवेरिटी? Severity is impact to functionality of an application। मतलब किसी भी एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी को इम्पैक्ट करता है सेवेरिटी। जैसे सर लॉगिन फॉर्म है, तो उस लॉगिन फॉर्म में हमने सर जैसे सबमिट बटन है, उसको हम क्लिक कर रहे हैं तो उसकी सेवेरिटी सर हाई होगी सर। क्लिक कर रहे हैं तो सेवेरिटी हाई होगी। क्लिक कर रहे हैं बट वर्क नहीं कर रहा, क्लिक नहीं हो रहा, वर्क बटन क्लिक नॉट वर्क। तो प्रायोरिटी फिर क्या है? डिफेक्ट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी और सेवेरिटी में क्या डिफरेंस होता है? प्रायोरिटी सर, प्रायोरिटी में सर पहले सेवेरिटी को पॉइंट को मैनेज करते हैं कि प्रायोरिटी को करते हैं? पहले सर प्रायोरिटी को मैनेज किया था, फिर सेवेरिटी मैनेज। यस सर। कि पहले सेवेरिटी होता है फिर प्रायोरिटी होता है। जैसे लॉकडाउन चल रहा है, यस सर। अब लॉकडाउन चल रहा है तो इस केस में आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये सेवेरिटी है कि प्रायोरिटी है? सेवेरिटी हुआ ना ये, यस कि भाई लॉकडाउन में हमें ये चीज नहीं करना चाहिए। कि प्रायोरिटी हो, प्रायोरिटी ये हुआ कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसमें फिर प्रायोरिटी होगा कि हमें मास्क लगाना चाहिए, यस हमें सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, ये क्या हो गया? प्रायोरिटी हो गई। सेवेरिटी मतलब रूल्स फॉलो करना, और रूल्स फॉलो करने के लिए फिर प्रायोरिटी होगा, पहले प्रायोरिटी होगा फिर सेवेरिटी होगा। यस ठीक है, देखो आपको नॉलेज है, बट फर्स्ट लिमिटेशन आपकी तो ये है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन का आंसर क्या देना है, क्योंकि आप रट रहे हो। यस आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, क्योंकि आप यदि समझोगे तो आप उसको 10 तरीके से मैं पूछूंगा तब भी उसका आंसर दे सकते हो, और यदि आप रटोगे तो आपने जितना पढ़ा है बस उतना ही बता सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या कोई डेफिनेशन, जैसा आप मेरे को रटा रटा है डेफिनेशन दे रहे हो, तो पहले आप ये जो रटंत विद्या है यस इसको पहले आप हटाइए। आप हर एक टॉपिक को अच्छे से समझिए, यस जो भी टेस्टिंग आप बता रहे हो उसके डेप्थ में जाके समझिए कि ये क्यों यूजफुल है, इसलिए यूजफुल है। ठीक है, तो ये चीजें आप सुधार करिए, तो बाकी ऑटोमेटिकली आपका अच्छा हो जाएगा। कॉन्फिडेंस में आपको चीजें याद नहीं हो रही, आप जो चीज बोलिए, जैसे आपने अपने स्ट्रेंथ में बोला कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका एग्जांपल होना चाहिए कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं लॉकडाउन में यदि इंटरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, यदि मैं पर्टिकुलर सीधी सी बात है इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी यदि मैं अपने वर्क के लिए, इंटरव्यूज के लिए, ठीक है, अपने रोजगार के लिए यदि मैं वहां से आया हुआ हूँ, जबकि घर वाले मना करते हैं, रिश्तेदार मना करते हैं कि मत जाओ, तो ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही हुआ ना। इस सिचुएशन में जो इंसान वर्क कर रहा है वो सब सेल्फ कॉन्फिडेंट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब प्रिकॉशन लेके काम नहीं करना चाहते, मतलब उनके लिए एक बहाना है, कोरोना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखना, उनके लिए, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एक बहाना हो गया, ठीक है ये बहाना, क्योंकि आप पढ़ने के लिए कोई बहाना नहीं है, सीखने के लिए कोई बहाना नहीं है, इंटरव्यू के लिए कोई बहाना नहीं है। और आईटी कंपनी का भी आपने टर्नओवर देखा होगा और बढ़ा ही है, आईटी कंपनी का टर्नओवर कम नहीं हुआ है। ठीक है, आप टीसीएस का, इन्फोसिस का, इनका किसी का टर्नओवर देखिए, तो आईटी में अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो आईटी स्टूडेंट्स के लिए मेरे ख्याल से किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत अच्छे से ट्रेन हो सकता है, पढ़ सकता है, सीख सकता है। ठीक है, ठीक है, अब हम आपका फिर से इंटरव्यू लेंगे, आप अच्छे से प्रिपेयर हुई। हमारे इंटरव्यू का मकसद ये नहीं है कि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको नहीं आता है, हमारा मकसद ये है कि आप इस तरीके के फेस टू फेस इंटरव्यू से और अच्छे से सीखिए और अपने मनोबल को बढ़ाइए। ठीक है, इसीलिए इंटरव्यू जब दो तो बिल्कुल देखो कूल तरीके से रहो, नहीं होगा या होगा, तीसरा कुछ नहीं होगा ना, नहीं होगा सीधी सी बात है, आपके प्रेस्टेशन से भी नहीं होगा तो प्रॉब्लमेटिक है। तो आप बिल्कुल कूल होकर के इंटरव्यू दो, पहले जैसे जमाना नहीं है कि बिल्कुल टाई बांध करके, शर्ट पहन के, फॉर्मल पहन के, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की डेट में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, यदि मैं एक इंटरव्यू लेता हूँ और मुझे बंदे में नॉलेज दिखता है तो भले वो टी शर्ट में आता है तब भी मैं उसको सेलेक्ट करूंगा। ये कोई मैटर नहीं करता है कि आपका ड्रेसिंग क्या है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपका बिहेवियर स्किल होना चाहिए, आपके अंदर लर्निंग स्किल्स होना चाहिए। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स। लेकिन यदि वो चीज यदि हो जाएगी तो थोड़ा और बेटर हो जाएगा, बट यदि वो चीज बाद में देखी जाती है, पहले मेन चीज ये देखी जाती है, ये चीज पे आप इंप्रूव करें। ठीक है, थैंक यू।